جی ناظرین خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا سیاست، فوج، جمہوریت اور مارشل لا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مشرقی پاکستان اور پھر مغربی پاکستان کی، اگر ہم بات کریں جب پاکستان نہیں بنا تھا، کوششیں جاری تھیں پاکستان بنانے کی، بر صغیر میں کیا کچھ ہوتا رہا، ان سب کو اپنی نظر سے دیکھا۔ فوج کا کیا کردار ہوتا ہے، اداروں کا کیا کردار ہوتا ہے، سول حکومتیں کس طرح ایک نیشن کو، ایک قوم کو بڑے بلند رتبے پر لے جاتی ہیں، بڑے عمدگی سے اور بڑے سلیقے سے۔ ہم اس پر آج ہم بات کریں گے تفصیلی بات، بارڈر ایریاز پر ہم بات کریں گے، کشمیر ایشوز پر بھی ہم اس پہ بڑا تفصیلی ان سے بات کریں گے، جو ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس حوالے سے بھی ہم ان سے ذرا تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ یہ اس پورے مارشل لا میں مارشل لا کا حصہ بھی رہے۔ حکومت کیسے گری اور وہ بھی اپنی نظر سے انہوں نے دیکھا، پاکستان کیسے ٹوٹا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل فیض علی چشتی صاحب۔ جنرل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ، دعا آپ کی دعا سے ریزنیبل ہیلتھ، ریزنیبل ریپوٹیشن، حق حلال کی کھاتے ہیں، دیٹ از اباؤٹ آل۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، فرمائیے۔ آپ نے پورا پاکستان بنتے دیکھا، پاکستان کی راستیں دیکھی، پاکستان کے تمام ادوار دیکھے، آج 2015 میں پاکستان جہاں پر ہے، کیا ایک انالیسز آپ کرتے ہیں اس پورے ملک کی سیاست کا اسپیشلی اور فوج کے آپس کا جو تعلقات ہیں حکومت اور فوج کے؟ سوال تو بڑا لمبا ہے، کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لیکن جواب ضروری ہے، کیونکہ قوم کو کچھ بتانے کے لیے سچی باتیں کوئی بتاتا ہے، کوئی نہیں باتا۔ میرا تو یہ فیتھ ہے، یقین ہے اللہ کے اوپر کہ سچ بولو، چاہے اپنے رشتہ داروں کا بھی نقصان ہوتا ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں سچ ہی بولتا ہوں، اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی تو میں بولتا ہی نہیں، میں جواب نہیں دیتا۔ آپ کا حق ہے جو مرضی سوال پوچھے، میرا حق ہے جواب دوں یا نہ دوں۔ آپ نے جدھر سے شروع کیا، میں نے تو کالج میں جہاں پڑھتا تھا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے پاکستان کا تصور ابھرتے دیکھا کہ پاکستان بننا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس کے بعد پھر پاکستان کچھ نہیں تھا پاکستان کے پاس جب بنا، پھر پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھا، پھر اس کے بعد پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا، آج پاکستان کو ڈوبتے دیکھ رہے ہیں، تو ہم پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کون بتاتے ہیں لوگوں کو یہ ہوتے کو نہیں؟ کی بات کی 71 کا جو دور ہے، اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فوج کا بڑا کردار تھا پاکستان توڑنے میں، تو ایسا کچھ ہے؟ جرنیلوں کا ہاتھ تھا پاکستان توڑنے میں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا پاکستان ہندوستان کی طاقت نے توڑا یا پاکستانیوں کی غداری نے توڑا؟ ٹھیک ہے، اور غداری پر کس نے مجبور کیا؟ جب غداری کی جو آپ بات کرتے ہیں تو پھر غداری میں آ جاتا ہے کہ غداری کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کے لیے تو ایک خاص انٹرویو ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں پاکستان بنا، پاکستان کیوں بنا، کیوں بنا، کس لیے بنا، کس نے بنایا؟ پاکستان بنا تھا تاکہ جو مسلمان پاکستان ملک میں جائیں وہ قرآن کے مطابق اسلامی فلاحی حکومت قرآن کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ حکومت تو زیادہ فوج کی رہی، وہ کیوں نہیں ہوا؟ حکومت فوج کی نہیں رہی، حکومت زیادہ سول کی رہی ہے۔ جب آپ ایسے سوال کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ فوج کون بناتا ہے؟ فوج بنائی کس نے بنائی؟ پاکستان بنایا کس نے بنایا؟ پاکستان تو ووٹ پہ بنا نا، جمہوری طریقے سے بنایا۔ جمہوری طریقے سے بنا، جب پاکستان بن گیا تو کیا آپ نے جمہوری طریقے کے مطابق وزیر اعظم بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ میجورٹی کن کی تھی؟ ان کی تھی، جس کو ہونا چاہیے تھا، آپ نے تو حق مارا، پہلی غلطی سمجھے۔ اس کے بعد جو ہے جب پاکستان بنا تو ہندوستان میں تو فوج تھی، پاکستان میں تو کوئی فوج نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تو فوج بنی 14 اگست کے بعد۔ 14 اگست کے بعد جو پاکستان میں تھے، وہ جو پاکستان میں رہنا چاہتے تھے وہ پاکستان کی فوج کا حصہ بن گئے، جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ ہندوستان میں جانا چاہتے تھے، وہ چلے گئے۔ اب اس کا جو آپ نے دوسرا سوال دیا کہ پاکستان کیا اس کے مطابق چلا؟ نہیں چلا، تو جس کے لیے میں آیا تھا وہ جو نہیں ہوا تو مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جو لوگ بعد میں پیداوار ہے، جو آج کل کے بچے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے، جو میری عمر کے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے۔ میں نومبر 47 میں
इंडिया से पाकिस्तान आया, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को मैं पाकिस्तान आया बाकियों के साथ बजरिया बहरी जहाज। अच्छा, बॉम्बे से कराची। हम क्यों बहरी जहाज से क्यों आए? उधर ही थे हम। अक्टूबर में कश्मीर में झगड़ा शुरू हो चुका था, मारकुटाई लड़ाई हो चुकी थी। इंडिया से जो लश्कर मश्कर जो कुछ भी है तकरीबन श्रीनगर के पास पहुंच चुके थे, तो हिंदुस्तान को खतरा था कि कश्मीर गया। अब हम जो लोग थे उधर, हम कोई 20-30 ऑफिसर या मे भी 40 ऑफिसर उधर जो थे, उस वक्त जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी था उसका जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा था वो भी हमने लेके आना था साथ। अच्छा, तो अब अकेले अपनी एक जान नहीं थी, वो पूरा सारा ग्रुप लेके आना था। अब उस ग्रुप का जो पता लगा हमको, जो उनकी जो प्लान थी वो ये थी, हिंदुस्तान की प्लान थी। उन्होंने सोचा जब ये सारे तोपखाने वाले पाकिस्तान की फौज नई फौज है, उसके पास तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जब ये पहुंच जाएंगे पाकिस्तान तो ये एक बड़ी ताकत होगी। इस ताकत को फिर कश्मीर में वो इस्तेमाल किया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये प्लानिंग वो उस टाइम कश्मीर की कर रहे थे जब अभी स्टार्ट था हमारा 14 अगस्त। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर में आया, नवंबर से पहले अक्टूबर में कश्मीर की क्या सिचुएशन थी। ओके, अक्टूबर में सिचुएशन ये थी कि कश्मीर में लोग कश्मीरी उठे हुए थे, लड़ रहे थे, तकरीबन श्रीनगर के पास पहुंचे हुए थे जब हिंदुस्तान की फिर फौजें उतरी हैं। ठीक है जी। तो उस वक्त जो पाकिस्तानी जो मर्जी लश्कर कह लें, घुसपैठिए कह लें या आज़ाद कश्मीरी कह रहे, जो कुछ भी है वो लड़ रहे थे, तो उनके पास क्या आर्टिलरी की तोपें थीं? अगर थी तो किस कैलिबर की, किस ताकत की? नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 3.7 होगी, दैट इज ऑल। 25 पाउंडर गोला नहीं था, हैवी नहीं थी उनके पास। अब जो हमारा हिस्सा स्कूल ऑफ आर्टिलरी का था जो हमने लेके आना था, उसमें तो बड़ी तोपें भी थी जो नहीं दी गई, जो बड़ी तोपें भी थी जो हमने लेके आनी थी साथ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान आर्टिलरी वाला ग्रुप देवलाली से जाएगा तो पाकिस्तान फौज को ताकत मिलेगी। यही ताकत जो है आर्टिलरी की कश्मीर में हमारे ख़िलाफ़ कश्मीर में इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए इनको जब ये भोपाल के पास पहुंचते हैं गाड़ी, इनकी स्पेशल ट्रेन, उल्टा दो, मार दो। ओके, ठीक है। क्योंकि हमने बाई ट्रेन आना है, जैसे समझ लें हमने बॉम्बे से आना है दिल्ली, दिल्ली से फिर हम अमृतसर अम्बाला से होते हुए पहुंचेंगे। तो जब हम भोपाल में से गुजरते हैं, उधर हमारी स्पेशल ट्रेन एक है या दो है जो आर्टिलरी ऑफिसर्स या जेसीओस, अदर रैंक्स, आर्म्स, एमुनिशन, गन्स लेके आ रहे हैं, इनको उधर डिरेल कर दो और जैसे बाकी कत्ल गारत हो रहा था गाड़ियों का, हिस्सा बना दो, इनको भी मार दो। ये प्लान लीक आउट हो गई। अच्छा। तो फिर जो हमारा कमांडेंट था स्कूल ऑफ आर्टिलरी का, वो ब्रिटिश था, ब्रिटिश फ्राउन, ब्रिगेडियर फ्राउन, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इनको भाई रेल नहीं भेजूंगा, ये कॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान का हिस्सा है सारा, ये बाई सी जाएंगे, ये बॉम्बे से कराची जाएंगे, बाई रेल नहीं जाएंगे। नवंबर 47 आई लैंडेड इन कराची, पाकिस्तान। तो सब इतनी मुश्किलें देखी आपने, अपनी आंखों से देखी, फेस भी की। फिर जब पाकिस्तान 71 में टूटा तो क्या फील हुआ आपको? दुख हुआ जब 71 में पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, दुख हुआ आपको? दुख नहीं होना चाहिए था। तो हमारी आज की जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, वो लगता है कि उसे एहसास नहीं है कि यहाँ से पाकिस्तान टूटा। एहसास नहीं है, क्योंकि जो सफ़ेद बालों वाले हैं मेरे जैसे, जो आपने कौम को पूरा कुछ बताया नहीं। आपके जो स्कूल की किताबें हैं उनमें सारा कुछ नहीं बताया गया, नहीं बताया जाता। जो काम करने वाले थे, वो जो 16 दिसंबर का दिन है, सियात दिन के तौर पे मनाना चाहिए। जी,
16 दिसंबर का दिन जब बांग्लादेश टूटा, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा, उसको स्याह दिन के तौर पे नहीं मनाना चाहिए? इसका जवाब मैं इनडायरेक्टली देता हूँ। हाँ, एक पाकिस्तान एक्सर्साइज सोसाइटी, मैं उसका सदर रहा हूँ, 17 साल सदर रहा हूँ। सदर बनने से पहले मैं एक ऑर्डिनरी मेंबर था। एक 6 सितंबर आई, जनरल कमर अली मिर्ज़ा साहब उस वक्त सदर होते थे पाकिस्तान एक्सर्साइज सोसाइटी के, इंटरकॉन्टिनेंटल पिंडी में उन्होंने फंक्शन की 6 सितंबर की, तो नेचुरली मैं भी इनवाइटेड था। उधर प्रेस वाले गए, प्रेस वालों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी आज 6 सितंबर है तो आपका क्या फीलिंग है, या आपका क्या, व्हाट वुड यू लाइक टू से। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही कहता हूँ कि मैंने 6 सितंबर वाली लड़ाई में शुरू से लेके आखिर तक हिस्सा लिया था। आप 6 सितंबर की बात करते हैं, आप 16 दिसंबर की बात क्यों नहीं करते? उसको क्यों भूल जाते हैं? उसको आप क्यों नहीं मनाते शोक का दिन? आपने कहा? मैंने कहा, अखबारों में आया, अखबार उठा के देख लिया उन्होंने। और जलन साहब जो सदर थे वो नाराज हो गए थे, ये आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा क्यों, हकीकत है। क्यों आर्मी वाले या जनरल्स हैं वो इसको क्यों? भाई मेरे पास नहीं, ये तो वो चला गया, वही जवाब दे सकता है ना। मैं जनरल हूँ, मेरा तो जवाब ये है कि दोनों का होना चाहिए। द नेशन शुड नो बोथ द थिंग्स। और हमारी यंग जनरेशन को भी पता होना चाहिए किन किन बुनियादों पे पाकिस्तान टूटा। ये देखो, मैं अभी 65 की बार का सारा कुछ हुआ है, आपने हमने बताया, ठीक है, सवाल पूछे, हम जवाब देते हैं आपको, ठीक है। उसी तरह से फिर 16 दिसंबर की जब आप बात करते हैं तो वो भी आप करे को पूछे, उसकी जैसे आपने कहा वजूहात कई है, एक नहीं है। अभी आप एक दो अगर आप बताना चाहें, कौन कौन सी बड़ी वजूहात थी? बड़ा उल्टा सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। अदनान साहब आप मुझे बताएं, Sentülükçe biliyor musunuz? Ben sana söyleyeceğim ne oldu, nasıl oldu, ne zaman oldu? जवाब है, मुझे जवाब दें। आपको समझ ही नहीं आई कि क्या मैं कह रहा हूँ। मैंने तुर्की ज़बान बोली है, मैंने तुर्की ज़बान में आपसे सवाल पूछा है कि आप इसका जवाब दे नहीं दे सकता। वो तो आप इसको अप्लाई करें। जब आप हाकम हैं बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, डीसी हैं, कमिश्नर हैं, जो कुछ भी हैं, आप बंगाली नहीं जानते तो आप हुकूमत कैसे कर सकते हैं? वो क्या कर रहे हैं आपके सामने, क्या कर सकते हैं? दैट इज़ द बेसिक फॉल्ट। तो क्या होना चाहिए था जब क्या होना चाहिए था? पाकिस्तान बना दिया तब सबको पता था वहाँ बंगाल है, बंगाली बोली जाती है, यहाँ पाकिस्तान में पंजाबी, सिख, सिंधी हैं। तो क्या हमारे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क था? नहीं, बुनियादी शनियादी नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क था। आप फौज की तरफ आते हैं, मुझे पता है आपके दिल में क्या है, फौज में कौम की क्या है। मेरी बात सुने, देखें, फौजी अफसर कमीशन लेता है, चल भी से ब्रिटिश नाम में, वो फ्रंटियर फोर्स में जाता है, ठीक है जी जी। वो बलूच फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, वो बलूच रेजिमेंट में जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो सिख रेजिमेंट में जाता है, ठीक है। वो कमीशन लिया, वो सेकंड लेफ्टिनेंट है, बिल्कुल ठीक। कंडीशन, आप सेकंड लेफ्टिनेंट है, आपको 6 महीने दिए जाते हैं, प्रिलिमिनरी पश्तो पास करें, जो फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स की ज़बान है, या आप प्रिलिमिनरी गुरम के पास हिंदी पास करें, या आप उर्दू पास करें, जिसको रोमन उर्दू बाद में कहते हैं, नहीं तो आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनाने के लिए विद इन 6 months यू मस्ट पास प्रिलिमिनरी लैंग्वेज ऑफ द यूनिट इन विच योर ट्रूप्स आर। जी जी जी। उसके बाद कप्तान बनने के लिए या उससे ऊपर जाने के लिए यू मस्ट पार हायर क्लास। तो इसी तरह से जो आप बंगाल में पोस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को या डीसी को, जो सारा कुछ, आपने क्यों नहीं उसके ऊपर ये शर्त लगाई? तो सिविल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रही, आप कहते हैं? ये सिविल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी सिविल वॉर के दौरान। ये मैं तो शुरू से बात करता हूँ, आप तो आगे छड़प्पा मार रहे हैं, आगे मत जाए ना। ये तो शुरू में ही आप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन आपका
आपको पता ही नहीं है कि क्या ज़बान बोल रहे हैं, आप समझ नहीं सकते. हाउ कैन यू एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली. उधर स्कूल जो स्कूल वगैरह जो हैं सारे, उनमें स्कूलों में जो ज़बान पढ़ाई जाती है वो टीचर्स है कौन है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है, टेक्स्ट बुक्स हैं, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, आपको तो पता ही कोई नहीं. सो व्हाट वाज हैपनिंग यू डिड नॉट नो. तो ये बाकायदा प्लान वॉर थी जो काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान को खुद कहता है वहाँ पे कर रहा था, सारी चीज़ें प्लान थी. अगर ये उनकी प्लान थी तो आपकी फेलिंग थी, आपने उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्यों एक्शन नहीं लिया. जो के लेना चाहिए था. अच्छा चलो साहब, उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी, सिविलियंस की थी ना, सिविल की थी. दूसरे जो है ईस्ट पाकिस्तान को देखे डिफेंड करने के लिए कितनी फौज चाहिए. आप मशरकी पाकिस्तान गए, आपने जोग्राफिया देखा, नक्शा देखा, और इस तरह से यह है दरिया बीच में डिवाइड करता है 4 टुकड़े, इधर हिंदुस्तान है, इधर फिर हिंदुस्तान है, इधर छोटी सी सेंटर पे. उसको जो डिफेंड करने के लिए कितनी फौज चाहिए. हैवी बॉर्डर नहीं थी, दी नहीं आपने. कौन देता है, बजट बनाने वाले देते हैं, सिविलियंस देते हैं. खान साहब की हुकूमत रही थी, अयूब खान साहब, अयूब खान को छोड़ो, अयूब खान तो 58 की बात है, वो 11 साल क्या करतूत की, शुरू में 47 से क्या किया क्या दिया. बेसिक तो वो है. जब पाकिस्तान बना है, जो फाउंडेशन आपने ले करनी है वो तो फौज ने नहीं की, वो तो अयूब खान ने नहीं की, सिविलियंस ने की है. अगर अयूब खान की भी बात करते हैं तो जर्नैल तो जर्नैल नहीं बनाता, सिविलियन जर्नैल बनाते हैं. जर्नैल बनाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए. कल वाली जो मीटिंग थी उसमें अच्छा मैंने कहा देखे वजीर तो एकदम बन सकता है. आज गंडेरिया बेच रहा है, शाम को वजीर बन जाता है. सियासतदान एक दिन में नहीं बनता, सर्जन एक दिन में नहीं बनता, जनरल एक दिन में नहीं बनता, स्टेट्समैन एक दिन में नहीं बनता. उसके लिए यू नीड टाइम. तो शुरू से ये कौन करता है. जो मैंने कहा अभी ये जो जर्नैल आया वो आप यू कांट सर्व गुड फूड व्हेन यू हैव ए बैड कुक. आप लगाते हैं. चलिए आप ज़िया की बात करते हैं. पहले ही आपने ज़िया की बात की. ज़िया को किसने चीफ बनाया, खुद बना? खुद नहीं बनाया. किसने बनाया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो. तो क्यों बनाया? तो ये गलती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब. जनरल टिक्का रिटायर हो रहा है, जनरल टिक्का के बाद नया चीफ बनना है. ठीक है, टिक्का के बाद नया चीफ बनना है तो GHQ से रिकमेंडेशंस जाती हैं कि ये इन द रन है, हम इसको रिकमेंड करते हैं, ये नहीं तो नंबर 2 इसको रिकमेंड करते हैं, इसको नहीं करते. उस रिकमेंडेशन में तो रिकमेंडेशन थी जनरल अकबर को बनाओ या जनरल शरीफ को बनाओ. 2 ऑप्शन थे. 2. ज़ियाउल हक के ऊपर था कि इसका अभी इतना तजर्बा नहीं है कि इसको कंसिडर भी किया जाए चीफ बनने के लिए. मजीद मलिक के ऊपर भी यही था कि इसका इतना तजर्बा नहीं है कि इसको कंसिडर ही किया जाए. जो GHQ की तरफ से ये क्या जिलानी साहब के लिए था कि ये टेक्निकली फिट नहीं है, इसने कमांड नहीं की. बाकी आफ्ताब साहब के लिए और अवान साहब के लिए था कि ये फिट नहीं है. ये सारी रिकमेंडेशंस लिख के दी गई, भेजी गई भुट्टो साहब को. ये आइज ओनली सीक्रेट होती है. मैंने ये टाइप किया है आपके हाथ से, खुद टाइप करके जनरल टिक्का आर्मी चीफ से साइन करवाया, खुद डिस्पैच किया प्राइम मिनिस्टर को फॉर एक्शन. क्यों? मैं उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी था GHQ में, ये मेरी ड्यूटी. तो भुट्टो साहब ने क्यों ये रिकमेंडेशंस नहीं मानी और अपनी मर्जी की. सो ज़िया का क्या कसूर है अगर उसने गलत काम किया? कसूर तो बनाने वाले का है. अगर आप कुक खराब रखेंगे और वो बाद में आपकी खीर खराब बना देता है तो आप उसको कहते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये हकीकत है. हकीकत तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है. जनरल साहब ये भी कहा जाता है सच्चाई में तो चोट मोड़ नहीं होता. नहीं होनी चाहिए, सच खुल के बोलना चाहिए. अच्छा जनरल साहब ये भी कहा जाता है कि जब ज़ियाउल हक साहब मार्शल लॉ लगाना का टाइम आया, मार्शल लॉ लगाने की बात है, तो आप भी उस मीटिंग में थे जब वो फैसला कर रहे थे कि मार्शल लॉ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. जब लाहौर में ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफे भी दिए थे तो मतलब लोगों की राय है, क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे, आप वहाँ मौजूद थे, कि मार्शल लॉ लगाने में ज़ियाउल हक की निस्बत जनरल चिश्ती का बड़ा हाथ था. उन्होंने कहा, वो बार बार इंसिस्ट करते थे कि मार्शल लॉ लगना चाहिए. दुरुस्त है ये बात?
वो जनरल चिश्ती तो एक कोर कमांडर है। ये तो प्रेस वाले पैसे लेके जो लिखते हैं वो लिखते हैं, ये तो किसी की। क्या मीटिंग, वो मीटिंग क्या थी, आप थे उसमें, क्या क्या डिसाइड हुआ? जनरल ज़ियाउल हक ने जब तक मार्शल लॉ नहीं लगाया था, टेक ओवर नहीं किया था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन तक ट्रांसफर की जा रही थी? देखें, मेरी बात सुने, आज का प्राइम मिनिस्टर ले लें, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके ख्याल में आबादी अगर 21 करोड़ है पाकिस्तान की, तो उसमें से उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग होंगे जो कनेक्टेड रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? चंद एक होंगे, चंद एक नहीं, मुझे तो फिगर, हम सैकड़ों में कह सकते हैं। मुझे फिगर बताएं। हम सैकड़ों में कह सकते हैं। सैकड़ों में? हाँ। तो मैं 1000 में चला जाता हूँ। ओके ओके जी, मान लिया। मैं करोड़ में चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं सर। राइट? अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, मैं 10 कोर कमांडर हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान में मेरे साथ कितने लोग इन कांटेक्ट रहे होंगे? थाउजेंड्स में कह सकते हैं। थाउजेंड्स नहीं, अबाउट 3.5 करोड़। ओके, थाउजेंड्स में कैसे? जो आपके उसमें आ रहे हैं, थाउजेंड में कैसे कहते हैं? डायरेक्ट कार में जो आ रहे हैं आपके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, वापस चले देखे, मैं स्टाफ कॉलेज में 2 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। अफसर कोर्स करने आते हैं, वो कोर्स करने के जब फैल जाते हैं सारी दुनिया में, वो मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है। हो गए। उनके पेरेंट्स मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है। हो गए। उसके बहन भाई इन्वॉल्व नहीं है। हो गए। उनके दोस्त 4 इन्वॉल्व नहीं है। हो गए। तो एक बंदा भी अगर आप देखें तो उसका एक बंदे के साथ 10 आप रखें, ठीक है। अब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ मालीर में, उधर कितने बंदे होंगे? मैं निशारे में स्कूल ऑफ टिल्ली में 4 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, कितने बंदे होंगे? मैं 10 कोर कमांडर हूँ, मेरे नीचे 4 जर्नैल है, बाकी कोर कमांडरों के नीचे 2 हैं, मेरे नीचे 4 जो है, मेरे नीचे सबसे ज़्यादा आर्मी है, 4 डिवीज़न है, उनके रिश्तेदार रखे, वो रखे, दोस्त रखे, सारा कितने हैं? करोड़ों में जाते हैं। करोड़ों में हो गया।